Namaste, Sat Sri Akal. Welcome to Courtroom. Wishing you a very happy new year. This is the first video of 2025 on Courtroom's channel. Now, I would like to today discuss without pre-planning anything, judiciary prep. I've been teaching for this exam for over a year now, and whatever FAQs that I have encountered in my own offline interaction, because we have a very limited batch size here in this very classroom. So I get to interact a lot with the students, and I have jotted down a few things in my mind as to what all they keep asking. Then I also interact with a lot of my ex-students who keep on pinging me about guidance, etc. So I thought I'll make a sort of a compilation video, but I have nothing written down on the board. I have no pre-planned questions in this in which I'll be taking up. However, we'll do a heart to heart, as in जुडिशरी प्रिपरेशन के बारे में जो भी मेरे अब अनुभव और तजुर्बे में जहाँ जहाँ स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे. आई वोंट बी टीचिंग यू एनीथिंग. आई हैव ऑलरेडी taught on a few lectures, quite a few lectures now in the judiciary playlist that is available on the channel. We'll be discussing about कब करना है, कहाँ से शुरू करना है, कैसे तैयारी करनी है, कितनी तैयारी करनी है, कितनी डेप्थ में करनी है. We'll be discussing about all aspects. This session of course is going to be in English as usual. So सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जो सबसे पहला जो प्रश्न आता है that is कब और कहाँ से शुरुआत करनी है. Then the third is कितनी पढ़ाई करनी है. अब कब शुरुआत करनी है? Ideally speaking, after the third semester in a 3-year law program, or roughly around the third year onwards for a 5-year law program. So if you are in the BA LLB scene, BB LLB scene, roughly speaking, either at the end of the second year or the third year, whatever approach suits you. For a 3-year LLB scene, if you are really serious about these examinations, you are looking at the end of third semester, pretty much 50% of your course. संकल्प करके चलना है कि तैयारी करनी है पहली बात, क्योंकि यात्रा लंबी है. दिस इज जस्ट लाइक द यूपीएससी बट ऑन द लॉ साइड. सीटें बहुत कम है, एग्जाम शेड्यूल इरेटिक है, सिलेबस आई वोंट से बहुत टफ है बट काफ़ी है, राइट. तो अब उसको जानने के लिए सबसे पहले तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया कि कब तैयारी करनी है. होपफुली दैट इज क्लियर. लेकिन संकल्प करके करिएगा कि only step into these waters if you are really serious about the exam. All right. अब कहाँ से तैयारी करनी? कहाँ से तैयारी करने में जी दो रास्ते हैं. एक है जी सेल्फ प्रेप. अब आप पूछेंगे कि सेल्फ प्रेप, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो सेल्फ प्रेप से नहीं तैयार किया जा सकता. However, दो ही रूट हैं तैयारी करने के. एक है आपका सेल्फ प्रेप, दूसरी है आपकी कोचिंग, राइट. अब चलते हैं ये प्रश्न पे कि ये बड़ी असमंजस है कि कौन सी कोचिंग. अब मैं ऑफ कोर्स किसी दूसरे की ऐड तो कर नहीं सकता क्योंकि मैं खुद पढ़ाता हूँ. आई रन अ कोचिंग प्रोग्राम फॉर दीज एग्जामिनेशंस. द आइडियल सिनेरियो इज इफ डू नॉट गो इन फॉर कोचिंग just for the sake of going for coaching. Just check whether the teacher's style of teaching aligns with you. So if you are in tune with the way the teacher is teaching, I believe then be it whatever coaching, it will suit you. Some teachers teach very fast, some teachers teach very slow, some teachers have a very different way of teaching, some teachers teach on the normal nominal route that has been going on for decades. You decide post watching. आजकल YouTube कह रहा है सारे के सारे लेक्चर्स हैं ही. जैसे फॉर एग्जांपल हमारी प्लेलिस्ट में मेरे काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं. अभी दूसरे जो फैकल्टी मेंबर्स, जो दो लोग और हैं जो यहाँ पे जो पढ़ाते हैं, उनके कोई लेक्चर यूट्यूब पे पब्लिकली अवेलेबल नहीं है. बट मोस्टली द कोर सब्जेक्ट्स आर बीइंग हैंडल्ड बाय मी, सो देयरफॉर आई पोस्ट माय ओन लेक्चर्स if they suit you. So for example, ours is a very I have barely like 50 seats in this classroom. If you want a coaching academy that is on the smaller, more personalized side, then you can consider us. If you want to go in for a grand old school style coaching academy, you can go there wherever. Of course I can't take names. Then
इफ़ यू वांट कि भाई थोड़ी सी मुझे थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड कुछ अटेंशन मिल जाए, कोई बातचीत हो जाए मेन टीचर से, देन गो फॉर दैट सॉर्ट ऑफ अ कोचिंग अकेडमी. हाउएवर कोचिंग रिजल्ट रैंक वैंक सब गए कूड़ेदान में. इट इज all about the teaching style and how a student connects to it. So for example, मेरे पुराने students जो who cleared DULB via us, they mostly are with me in their judiciary journey because they connected with me. If you are able to connect either with me, then well you choose us or you go somewhere else. But सिर्फ ये दिमाग में रख लेना that the teaching style has to connect to you. So there are endless videos available on YouTube. Keep on doing the research, keep on doing the homework. अब आते हैं जी सेल्फ प्रेप पे. अब सेल्फ प्रेप का क्या करें, कब, कहाँ से, मतलब कहाँ से अब सेल्फ प्रेप. चलो मान लेते हैं कि सेल्फ प्रेप की तैयारी शुरू करनी है, तो अब मुसीबत आती है कि जी कितनी करनी है, क्योंकि किताबों के अंदर जैसे जो हिसाब से दे रखा है वो कुछ ज़्यादा ही डेप्थ में है, सबको पता है. और उस लेवल की रिक्वायरमेंट है कि नहीं और किन सब्जेक्ट्स में है, तो सेल्फ प्रेप में ये बेसिकली एक स्टूडेंट की विडंबना और दिक्कत है. दिस वीडियो कैन गो हेयर देयर एवरीवेयर बिकॉज आई हैव नॉट प्री प्लान्ड इट. आई जस्ट वांटेड टू स्पीक अबाउट इट because वैसे भी I have an eye issue, so I can't really look at teleprompters. All of my videos have been without a script. I've never really created a script, but I do pre-plan them, the structure a bit. I'm not pre-planning anything, and I won't even edit out anything from this video, even if I sneeze or whatever. तो कब, कहाँ और कितनी. अब प्रश्न आ रहा है कितनी. तो ये दो रूट. अब ये कब डिसाइड करना है भैया कि ये सेल्फ प्रेप पे जाना है या कोचिंग में जाना है. सेल्फ प्रेप वालों के भी बहुत इंटरव्यू पड़े हैं यूट्यूब पे, लुक देम अप. कोचिंग वालों के भी बहुत इंटरव्यू पड़े हैं, लुक देम अप. फिगर आउट द काइंड ऑफ स्टूडेंट दैट यू आर. ऑलवेज रिमेंबर, स्कूल में चले जाओ वापस पीछे. कई बच्चों को ट्यूशन की जरूरत पड़ती थी, कईयों को नहीं एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत पड़ती थी. इफ यू आर द टॉपर काइंड्स हु इज इन वेरी कंफर्टेबल स्टडीज, कैन स्टडी लॉन्ग आवर, डू नॉट नीड अ स्ट्रक्चर्ड disciplined danda on your head, go right ahead, do self prep. So decide at the very initial stage whether you want to opt in for coaching or not, or perhaps you can self prepare for yourself for around 3 months and then perhaps decide whether you want to join a coaching program or not. Now coaching ideally speaking, roughly speaking 15 महीने में होती है. अब 15 महीने में जी कैसे होती है भाई, 1.5 साल में तैयारी होती है मोस्टली. अगर आप सीरियस हैं और स्मार्ट हैं अपनी तैयारी को लेके, मोस्टली एग्जाम स्पेसिफिक तैयारी 1.5 साल में होती है. ये वो वाले एग्जामिनेशंस नहीं है जिनके एग्जाम एनुअल बेसिस पे हो रहे हैं, सो दैट यू कैन टाइम योर प्रेप, टाइम योर अटेम्प्ट. इनके रिजल्ट्स भी नहीं आते. इट इज अ प्रीटी मच वेरी मेस्ड अप सीन. हाउएवर, सिंस वी आर नॉट गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट the philosophical aspects of what this messed up scene usually does, we are going to be talking about the scene itself. Alright, so 15 महीने आपने लेके चलने हैं. सो रफली स्पीकिंग आपको 1 साल प्लस 3 महीने, तो उसके अंदर आप 3 महीने और जोड़ दीजिए तो 18, मैक्स टू मैक्स 18 इज 1.5 साल. 1.5 साल में भैया तैयारी होती है. और अगर 1.5 साल में भी नहीं हो रही तो कभी नहीं होगी, ये भी बात आप तय लगा लीजिए. एंड ये मैं आपके सेल्फ प्रेप वगैरह वाले रूट में चल रहा हूँ. कोचिंग प्रोग्राम्स यूजुअली इतने में सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ द कोर्स इज कवर्ड आउट. हाँ, ऑफ कोर्स अगर आप स्टेट स्पेसिफिक जाएंगे तो एंसिलरी डिटेल्स बहुत सारी होती हैं. अभी जैसे फॉर एग्जांपल सीपीसी, इट टुक मी अराउंड 4 months टू कंप्लीट. इट वाज, आई थिंक क्लासेस वेंट ऑन टिल अबाउट द 120 आवर और 130 आवर मार्क. तो इतना टाइम लगता है. कई सब्जेक्ट्स बिल्कुल यूं हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑफ कोर्स जिस किस भी स्टेट की तैयारी वगैरह आप कर रहे हैं. खैर, स्टेट्स पे आते हैं. ये सब ओवरऑल रफ स्ट्रक्चर क्लियर है. जब तैयारी की ठान ली है कि जी करनी ही है जुडिशरी की तैयारी, तो अब ये हिसाब लगा लेते हैं कि सबसे पहली बात कहाँ का पेपर देना है. क्योंकि ये यूपीएससी स्टाइल तो है नहीं कि जी एक सेंट्रल एग्जाम है और एक ही तरीके की तैयारी है, उसके अंदर ऑप्शनल डाल दिया और काम हो गया. नहीं, स्टेट स्पेसिफिक सिलेबस अलग हो जाते हैं. इनफैक्ट सिलेबस नहीं, क्वेश्चन पेपर का स्टाइल अलग है. तो ऑफ कोर्स एवरी स्टेट इज डिवाइडेड इनटू 3. द फर्स्ट इज प्री, देन यू हैव योर मेंस, एंड आई कॉल इट द वाइवा. पीपल यूजुअली कॉल इट द इंटरव्यू, बट डीजीएस की नोटिफिकेशन में इट इज ऑलवेज कॉल्ड एज अ वाइवा. सो वाइवा गिव्स यू अ वेरी फेयर आइडिया एज टू
you are going in for a verbal examination, an oral examination of your knowledge that you have already demonstrated twice beforehand. I'm not going to get into the reservations, the marking schemes, etc. I've done that like twice, thrice. For DJS specifically, if you're looking for DJS, go look for those lectures. Ek judiciary की playlist है on this very channel. Please do explore that. Or you can visit our website, नीचे कहीं पे flash करा देंगे, and then just check everything is available there. However, coming back to the point is pre, mains and viva. Ab pre, like for example, mains in RJS, for specifically, let us say that you're preparing for RJS. They have a question paper structure. In mains specifically, I'm talking about, jisme if let us say these are the question paper marking, they give you very limited space to answer all of these. DJS mein, you have a normal answer sheet. So the way that you're answering the question becomes different. So for example, they ask you, let us say a 10 marker on DD, a dying declaration. The answer that you're going to be presenting in DJS is going to be different from the one in RJS. And then let us say, so DJS asks consti on a pre-ka level. Some other state, of course, is going to be asking it on a mains ka level as well. So you need to tailor your preparation accordingly. Coming back to the moot point, decide the states first, at least 2 in number, कि कौन से state का most serious attempt देना है. जब वो state lock in हो जाए, so let's just presume that you've locked out DJS, RJS. Now this is something that I make my students do in the classroom. You have to sit with the last year ki notification and you have to memorize the syllabus first. So for example, in DJS, I'm specialized in DJS specifically as of right now, but we are teaching for RJS, we are teaching most likely very soon for UP, and we'll be taking up Haryana as well, pretty much to cover out all Hindi belt states, but that is pretty much soon. Again, everything on the website. Now, DJS के अंदर जैसे कि मैं बात कर रहा था कि DJS में, for example, the Arbitration and Conciliation Act पूछी जाती है. अब मुझे ये जानना है एक स्टूडेंट से कि क्या आपको ये पता है कि प्री में आ रही है कि नहीं, या मेंस में किस पेपर में आ रही है. सिविल लॉ 2 में कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, सिविल लॉ 1 में कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, ये सब यू एज अ स्टूडेंट नीड्स टू नो बिफोर हैंड. सो यू नीड टू बी अ मास्टर ऑफ द सिलेबस दैट यू आर टारगेटिंग. तो लास्ट वाली नोटिफिकेशन उठाइए, उसमें से जो सिलेबस आपको बेसिकली मिले उसको थोड़ा सा रट्टा मार के कोशिश करके ट्राई टू रिप्रोड्यूस इट ऑन अ शीट ऑफ पेपर सो दैट एटलीस्ट यू नो व्हाट यू आर टारगेटिंग, एंड देन यू हैव टू कवर इट आउट स्टेप बाय स्टेप, बुलेट पॉइंट बाय बुलेट पॉइंट. सो फॉर एग्जाम्पल, डीजेएस के अंदर मुझे पता है जी सिविल लॉ 2 के अंदर स्पेसिफिकली सीपीसी मेंशन है और सिविल लॉ 1 के अंदर नहीं मेंशन है, राइट. तो जो सीपीसी की जो मैं तैयारी करूंगा, जो डेडिकेटेडली जो सीपीसी की तैयारी करूंगा, मेरे को पता है कि मेरे प्रश्न इधर आने हैं सीपीसी के. लेकिन अगर मैंने सीपीसी पूरी की पूरी, लेट अस से सिविल लॉ 1 के किसी क्वेश्चन के अंदर सीपीसी के किसी एस्पेक्ट में मैं कूद गया, दैट सब्जेक्ट इज नॉट अवेलेबल इन दैट लिस्ट. आई एम सेइंग दैट इफ आई जंप वे टू मच इन डेप्थ, लेट अस से दैट आई एम राइटिंग एन आंसर इन फॉर अ फैमिली लॉ क्वेश्चन इन सिविल लॉ 1 एंड आई जस्ट take a very deep dive into CPC in civil law 1, it won't work out. आप क्वेश्चन पेपर ही नहीं पूरा कर पाए, एज इन आप अपनी आंसर शीट ही नहीं पूरा कर पाएंगे, आप अपना अटेम्प्ट ही नहीं पूरा कर पाएंगे. सो यू नीड टू नो विच सब्जेक्ट इज वेयर एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर इट अकॉर्डिंगली, राइट. पॉइंटर नंबर 1 इज syllabus and syllabus. You have to do syllabus specialization. So let us write this down. So you have to do syllabus specialization of the state of your desired, of your chosen selected states. syllabus ही नहीं पता होगा तो क्या एग्जाम में, मतलब एग्जाम की तैयारी खाक करेंगे, क्योंकि syllabuses वास्ट हैं. सो यू नीड टू नो कि भाई साहब सिलेबस क्या है. आगे चलते हैं जी. सिलेबस के बाद देन इंस्टेड ऑफ ओवर एनालाइजिंग एंड ओवर थिंकिंग कि कितनी सीटें निकलती हैं, कितने मार्क्स निकलते हैं, कितने कट ऑफ जाता है, ये सब यू नो इट इज़ गुड टू नो, गुड टू होल्ड, व्हाटएवर.
However, you must not overthink any of this stuff, so you need not dive into way too many details. You only need one seat at the end of the day. Second thing, post mastering the syllabus and take this step by step. Let us say in college आपका सब्जेक्ट था प्यारा नन्ना मुन्ना राज दुलारा was ICA. Let us say that you were very comfortable with ICA in college. Start out with that. Prepare that. Then after preparing, now how do you prepare? कोई भी एक commentary उठा लेनी है. Do not go in for multiple too many resources because you will end up getting confused. ICA जिस भी पेपर में है, मतलब कौन से स्टेट के अंदर के, फॉर एग्जाम्पल 4 पेपर हैं दिल्ली में, जनरल लीगल नॉलेज, सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल लॉ. ICA इन ऑफ कोर्स यू विल प्रीटी मच नो कि ICA कहाँ पर है. ICA जहाँ जहाँ है, DJS के PYQ उठाइए और ICA के क्वेश्चंस अपने, जब आपके नोट्स उस अपनी कमेंट्री से बन गए, सारे के सारे तैयार हो गए, अटेम्प्ट द क्वेश्चन, सी व्हाट हैपेंस. आई एम प्राइमरली टॉकिंग टू सेल्फ प्रेप फोक्स, क्योंकि जिस भी आप कोचिंग अकेडमी में एनरोल होगे, ये उनका मतलब कर्तव्य धर्म है कि वो आपको ये काम करा के दें. ICA अपनी तैयारी जरा चेक कर लीजिएगा. तो अच्छा, अब कितने पढ़ें? तो बहुत ज़्यादा साइटेशंस रटने की ज़रूरत नहीं होती, बट हाउएवर ये स्टेट बाय स्टेट डिफर करता है. पंजाब के पेपर में आपको 4 से 5 केस लॉ लिखने ही पड़ते हैं, वो इनफैक्ट इंस्ट्रक्शन में भी लिखते हैं, बट DJS में लिखते हैं इवन इफ यू डू नॉट नो द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन और द आंसर टू द क्वेश्चन, please do attempt it. This is as much a test of analytical reasoning as well, your analytical skills, the application of a legal mind. भाई हर चीज़ किताब में नहीं दे सकते. आप JMFC की नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, मोस्टली सिविल जज ऑन इन अदर साइड्स, तो हर चीज़ तो किताब में पहले से नहीं हो सकती. सो दे आर ऑल्सो दे ऑल्सो वांट टू टेस्ट कि भाई करके क्या ये रियल लाइफ सिनारियो में ये कैंडिडेट लॉ अप्लाई करके एक अच्छा निर्णय दे पाएगा कि नहीं. यही है ना बेसिकली इस नौकरी के लिए. वकालत का पेपर नहीं दे रहे, अब आप वकील तो आप ऑलरेडी हो चुके, अब आप मैजिस्ट्रेट बनने का पेपर दे रहे हैं. सब्जेक्ट तैयार कर लिया, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम अ कमेंट्री, लेट अस से अवतार सिंह इज स्टैंडर्ड कमेंट्री, पढ़ ली सारा का सारा. एंटिसिपेटरी ब्रीच, प्रेजेंट ब्रीच के कॉन्सेप्ट हो गए, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एजेंसी आ गई, गारंटी वगैरह आ गए, पॉनर पॉनी, राइट, सब कुछ सारा का सारा आपका आ गया. एंड ये आपकी बेलमेंट आ गई, बेली आ गया, ये सारा आपने समझ लिया, सारा का सारा कॉन्सेप्ट वहाँ से समझ लिया. क्लासिक केस लॉज की अपनी लिस्ट बना ली किताब से. ग्रेट. कम टू द क्वेश्चंस. See whether you're able to attempt them or not. Same thing with CPC. Pick a standard textbook, Takwani. That's it. तैयारी करी, अपने सारे के सारे नोट्स बना लिए, समझ लिया. दिक्कत आ रही हो, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से CPC में दिक्कत आ रही है, ओनली CPC, एंड यू ओनली वांट हेल्प इन CPC, we have so when I taught CPC in the classes, so what I have done is I have dissected out modules from our main batch. तो अगर कोई तैयारी में स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक दिक्कत आ रही हो किसी स्टेट में, गो टू आवर वेबसाइट एंड चेक वेदर दैट सब्जेक्ट इज अवेलेबल. लेट अस से दैट यू आर फेसिंग एन इशू इन DRC, तो इन्वेस्ट 10-12,000 आई थिंक, इन्वेस्ट दैट अमाउंट इन योर प्रेप एंड एक्सेस द लेक्चर्स और अपनी तैयारी कर लीजिए, पढ़ लीजिए. Our doors are always open to anyone who's seeking help. Of course, the world doesn't run without money. I also have an academy to run, so therefore the fees is going to be there. I can't be broke without the fees, right? Because अगर पैसे ही नहीं होंगे तो ये कैमरा कहाँ से होगा, ये माइक कहाँ से होगा, और वेरी फ्रैंकली यहाँ खड़े ही क्यों हैं, राइट? ऑफ कोर्स पढ़ाने के लिए खड़े हैं, बट ऑफ कोर्स सबकी अपनी अपनी किचन भी है. जस्ट लाइक योर पेरेंट्स वर्क फॉर मनी, एंड जस्ट लाइक यू want a very stable government job, we also want a stable life. It is as simple as that, right? तो ICA लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट अस से CPC उठा ली, CPC की तैयारी कर दी, सारे पढ़ लिए, इंटरलॉकेटरी ऑर्डर्स, इंटरम रिलीफ आपके, डेथ ऑफ पार्टीज, अबेटमेंट ऑफ सूट, जितने भी सारे के सारे टॉपिक्स हम वोंट गो इनटू वे टू मच डेप्थ. CPC का एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा based on my experience as to what all topics do you need to study first and foremost on priority. If you want any such lectures, I hope that you're watching the video till now. Even if you aren't, well, that's your problem. If you are a serious candidate, I think we must be connected by now, as in up till now. Leave a comment down below so that at least I get to know as to what problems are you facing. All right. Now CPC की तैयारी कर ली. So again, check whether you are able to tackle out civil law 2 के questions. Check whether you are able to apply minds. I'm taking up DJS. आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, आप राजस्थान के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए. क्यों नहीं करने?
यहाँ पे जाके चेक करिए, देखिए एट द एंड ऑफ द डे कोई नहीं आ रहा आपसे पूछने कि भैया पीएचडी लेवल तैयारी करी थी, यू नो द लॉ इनसाइड आउट, यू नो द लॉ इन सो मच। पहली बात देखिए, नोट्स पे नोट्स पे नोट्स बनते चले जाएंगे, 5 साल की तैयारी कर लीजिए, रजिस्टर पे रजिस्टर नोट्स भर लीजिए। एट द एंड ऑफ द डे पहली बात वहाँ पे लिखना है, लिखना है और समय के अनुसार लिखना है। तो एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ नंबर ही, मतलब सिर्फ मार्क्स ही टोटल आउट करे जाते हैं। ये नहीं कोई पूछता कि कितनी आप डेप्थ में, फॉर एग्जाम्पल वर्ड मे के पीछे ही पड़ गए और उसमें 3 महीने आपने अगर निकाल दिए तो आप वेरी फ्रैंकली अटेम्प्ट में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यात्रा बहुत लंबी है। यू मे जस्ट गेट डिस्करेज, सो कंट्रोल योर इनर हरीश साल्वे and focus on clearing the exam and not being a scholar of law, because scholars of law are much more suited in universities। फिर उस रूट पे चले जाइए, LLM PhD वगैरह वगैरह, and start teaching in a university and start publishing papers, because then that is a better route। figure out yourself first, right? and therefore सब्जेक्ट्स को सीक्वेंस में आप तैयारी कर लीजिए। देन थर्ड, आई ऑलवेज एडवाइज पीपल to invest as much time in these 3 subjects: CPC, CRPC, of course BNSS and BSA, and evidence. I'll use the former names because I'm much more comfortable there. In fact, everyone's much more comfortable there. But ठीक है, कल को किसी को लगे नहीं कि ये पुराना, कोई बहुत ही पुराना वीडियो देख लें, तो लो जी BNSS and BSA, right? अब है क्या, लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी हिमाचल का पेपर नोटिफाई हुआ था, उसके अंदर तो ये नए कानून तो पूछ नहीं रहे। हाउएवर 25 के बाद जितने भी पेपर नोटिफाई होंगे तो उसमें तो नए कानून पूछेंगे, और नए कानून में जो जो चेंजेस हुए हैं, जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स जो बदले हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल 482 होता था इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट एंड सीआरपीसी, नाउ 528 बीएनएसएस। दीज सेक्शन नंबर भी याद होने चाहिए, और अगर कुछ चेंजेस हुए हैं इन दीज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस तो वो भी याद होने चाहिए। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, राइट? तो अगर आपके स्टेट में नया वाला सिलेबस नोटिफाई हो रहा है तो आपको चेंजेस भी ट्रैक करने हैं, और अगर हिमाचल जैसा जो पेपर जो अभी है मार्च में, अगर वो नोटिफाई हो रहा है और अगर उसमें नहीं बता रहे तो डजंट रियली मैटर, तो फिर तो पुराने वाले में ही आपको काम करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इन 3 सब्जेक्ट्स में इन्वेस्ट दी मैक्सिमम टाइम, आइडियली स्पीकिंग एटलीस्ट 2 से 3 महीने लगते हैं टू कवर देम आउट, यू नो, रियली वेल। You have done most likely in your final year of LLB, or most likely have done your LLB. I haven't included the BSA as such here, but as in sorry BNS as such here, क्योंकि IPC है, IPC most likely is very straightforward, आपको पता ही है, you are pretty much should be very comfortable with the BEAR Act, doesn't take all that much time। But these guys, these 3, they form the core crux of any judicial services examination। the more time you spend here, क्योंकि एग्जाम में they are going to test you out on these कि क्या ये आदमी या महिला मैजिस्ट्रेट JMFC जुडिशल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास बनने लायक है कि नहीं है। याद रखिएगा, वकालत का टेस्ट नहीं है, जुडिशरी में मैजिस्ट्रेट बनने का आपसे टेस्ट लिया जा रहा है। सेकेंडली, किसी और स्टेट में ऑफ कोर्स सिविल जज, डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर एग्जाम इज द लोअर ग्रेड। खैर, लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट मैटर्स बाय गोइंग इनटू दोज डिटेल्स। यही 3 एक्ट्स यूज करके आपका कोर्ट रूम चलेगा रोज के हिसाब से। तो क्या आपको आपका कोर्ट रूम चलाना आता है? दैट इज व्हाट द एग्जाम इज। तो वो कैसे चेक करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड थ्योरीज, थ्योरी ऑफ लॉज जितनी भी मतलब पढ़ के आएंगे, तो वो सारी की सारी आपको लॉ के ऊपर कॉन्सेप्चुअल मास्टरी चाहिए। एंड देन you need application of mind। So for example DGS again goes in for application of mind questions more often than not। अब तो खैर इस साल तो इन्होंने ट्रू फॉल्स भी पूछ लिया था, पिछली बार जब पेपर हुआ था। तो मेंस में मैं बात कर रहा हूँ, 1 लाइनर ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस were being asked, मतलब very rare occurrence, but this time it did happen। So you need to be a master of both abstract questions, so for example situation based questions, and the theory underlying the questions। देन फिर प्रश्न आता है कि भैया जी कि ये अब आंसर लिख तो लिया है, चेक किससे कराएं, कि चेक कैसे करें कि ठीक लिखा है नहीं लिखा है। फॉर दैट यू नीड गाइडेंस। फॉर दैट either a senior who's already in service, or either a person who knows these exams, the requirement of these exams, or perhaps you can pick up salt papers की जो books आती हैं by leading publishers,
You can pick up those papers and try to match your answers, try to see as to what all is happening, and that's how you go about it. That's pretty much it. अगर कहीं पे enrolled हैं तो कृपया करके अपने टीचर से अपने आंसर चेक करा लीजिए. नहीं तो मेंस आंसर राइटिंग टाइम इन द सेंस कि मेंस की जो जो टेस्ट सीरीज जो होती हैं, आई थिंक एवरी इंस्टीट्यूट मस्ट बी ऑफरिंग इट, कैन एनरोल एनीवेयर एंड देन कैन गेट फीडबैक ऑन योर आंसर्स प्रीटी मच. ये कोर जब निपट जाए, सो फॉर एग्जांपल डीजेएस के अंदर, अगेन आई विल कीप ऑन रेफरिंग टू डीजेएस बिकॉज आई नो दैट एग्जाम वेरी वेरी वेल. IPR is a major portion again in pre and in the last year civil law. I think civil law 2 के पेपर में आता है. And sorry, I told you I won't make an edit, but पीछे तो मोदी जी के यहाँ पे कुछ रैली चल रही है, तो एक PCR आई थी अभी, बिल्कुल ही बहुत तेज सायरन बजाते हुए, तो बिल्कुल ही मामला ख़राब हो गया था माइक पे. Therefore I have cut a very small portion of the video out. Any which way. So yeah, coming back to the point is like for example trademark, जिस पर हम बात कर रहे थे, तो trademark is a substantial portion. तो उसकी आपको तैयारी केवल दिल्ली में करनी है, बाकी स्टेट में जहाँ पे नहीं है वहाँ पे नहीं काम आनी. as simple as that. Therefore syllabus mastery is very very important. तैयारी करिए टॉपिक बाय टॉपिक, उस टॉपिक के क्वेश्चन छानिए PYQs में से, चेक कर लीजिए कि कितनी तैयारी हो गई है, and keep on doing it for all the subjects. As simple as that. Keep on adding the latest judgments को, जो कोई फॉर एग्जाम्पल लैंडमार्क आ गई है, पिछले साल आई थिंक 1.5 साल या साल पहले मैंने एक सुखपाल सिंह खेरा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की बहुत शानदार जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की ऑन आई थिंक 319 CRPC if I'm not mistaken, and that was asked in Punjab means because that had to be asked. It's a landmark judgment. It's talking about accused and what do we do, how does the court have the power to implicate someone as a new accused post the judgment is delivered, but I've forgotten the topic as such by now. And perhaps it was very very closely connected to this topic. Apologies if I'm mistaken, but I did a video, and not that I did a video and it showed up, but it had to show up. So the landmark stuff always shows up. So you have to track out of Delhi का पेपर देना, Delhi High Court और Supreme Court की judgment साथ साथ काम करनी है. Language is the key. ट्रांसलेशन की किताबें आती हैं बट जुडिशरी स्पेसिफिक बहुत कम आती हैं, तो दूसरे एग्जाम्स की उठा लीजिए, हिंदी इंग्लिश इंग्लिश हिंदी, राइट. वर्क ऑन दैट बिकॉज आई डोंट थिंक एनी लॉ अकेडमी मोस्टली विल पीपल यूजली हैव अ हिंदी टीचर. वील ऑल्सो हैव वन वेरी सून, बट मोस्टली द लैंग्वेज पोर्शन इज अप टू द स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ लॉ से ही फुर्सत नहीं है क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, राइट. तो ये आपने डिसाइड करना है. अगर देखिए यात्रा लंबी है, काफ़ी लोग यात्रा छोड़ भी देते हैं. सो लाइक स्टूडेंट्स जॉइन, जैसे फॉर एग्जांपल जिम है जनवरी में सब, तो व्हेन यू जॉइन द बैच यू आर वेरी एक्साइटेड, बट सिंस यात्रा काफ़ी लंबी है सो मैनी पीपल जस्ट लीव इट मिडवे. तो अगर आपने वो काम नहीं करना, लेट से आप सेल्फ प्रेप कर रहे हैं एंड यू आर फेसिंग डिफिकल्टी इन मैनेजिंग योर सेल्फ, और यू आर फीलिंग डीमोटिवेटेड व्हाटएवर, invest some money, join a coaching program, end of story. Do not even double think it, because you need people to talk to, you need companions. And perhaps if you are that sort of a person who's like completely dead stuck with your prep, join a program, ideally speaking an offline program where you see like 15 20 30 people. like हमारे क्लासरूम में इतने ही होते हैं, but of course कहीं और जगह पे बड़े भी बैच होंगे, तो एटलीस्ट आपके साथ वाले भाई बंधु जो उतना ही स्ट्रगल कर रहे हैं जितना आप कर रहे हैं, उनकी स्ट्रगल देख के भी you tend to feel कि हाँ भाई मैं अकेला या अकेली नहीं हूँ. So that always is a factor. But then again, I am a coaching academy guy. People will say कि ओह ये तो चाहते हैं कि हम एनरोल हों इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, मुझे चवन्नी का फ़र्क नहीं है very frankly. तो वो आपका decision है before people go wild. Usually idiots tend to go like on that route. Anyway, so answer writing यहाँ पर है, and मेजॉरिटी लोगों को लगता है कि प्री तो हो ही जाता है. प्री की कोई डेडिकेटेड अलग तैयारी तो होती नहीं है, लेकिन प्री नहीं होता है. सिंपल बात है. काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ जिनका 3 बार ही, मेरे स्टूडेंट नहीं, एज एन एक्स स्टूडेंट्स हु वर एनरोल्ड समवेयर एल्स, 3 बार हो गया लेकिन प्री ही नहीं निकलता. प्री की जो तैयारी है ऑफ कोर्स मेंस के साथ साथ ही होती है, कोई डेडिकेटेड अलग से कोई तैयारी करनी नहीं होती. हाउएवर प्री का जो स्टाइल है वो MCQ, ऑफ कोर्स इट्स एन MCQ, बट जहाँ पे इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी टेस्टिंग आउट हो जाती है बैराकी. एंड अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी थॉरो विद द लॉ एज सच,
you will face a problem in clearing out pre. So for example, I think last time around also DJS का भी cut off shot through the roof at around 160, 162ish, क्योंकि अब ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल है एंड टू प्रिपेयर। अब मतलब वो वैसी वाली दुनिया नहीं रही कि जैसे 10 साल पहले होता था कि ऑनलाइन कुछ अवेलेबल ही नहीं है, पीपल जस्ट हैव टू लाइक यू नो लैंड अप एट अ कोचिंग नेसेसरली, और सिर्फ एक या दो ही लोग होंगे। ऑनलाइन आपको भी पता है कि endless resources, this is the age of AI any which way, so the cutoffs are never never coming down. Perhaps इस बारी जब भी नए criminal laws जब भी notify होंगे प्री के लिए किसी भी state के लिए, then perhaps the cutoff slightly dips because acts नहीं है and people haven't mastered them yet, but it will be again cutoff high ही रहने वाला है in pre। तो प्री के लिए क्या करेंगे, उस स्टेट के PYQ सारे के सारे प्रिपेयर्ड आपके होने चाहिए एंड वन मोर स्टेट, बट डू नॉट गो ओवरबोर्ड कि मैं सारे ही स्टेट्स का सारा काम कर लूँगा। इट विल टेंड टू कंफ्यूज यू बिकॉज ईच स्टेट आस्क्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो उसके लिए मेरी जो राय रहेगी, लाइक फॉर एग्जाम्पल दिल्ली के लिए, कि आप दिल्ली साथ में कर लीजिए। सो फॉर एग्जाम्पल आइदर यू कपल इट आउट विद राजस्थान और हरियाणा, तो दोनों सिमिलर स्टाइल, उतने सिमिलर तो नहीं है, दिल्ली तो बहुत यूनिक क्वेश्चन पेपर है बट स्टिल विल गिव यू एन एड। तो लाइक फॉर एग्जांपल जब सीपीसी कर रहे हैं तो सीपीसी का काम कर लीजिए, साथ साथ सीआरपीसी आपकी तैयार होगी तो सीआरपीसी दिल्ली के निपटाए और साथ में एक स्टेट के और निपटा दिए, बट स्टिक एज क्लोज टू द लॉ एंड एज एज स्पेसिफिक सोर्सेज एज पॉसिबल, क्योंकि नहीं तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इतने ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि आदमी कंफ्यूजन में गोल 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 घूम के चक्कर खा के वहीं का वहीं गिर जाता है और सालों साल निकल जाते हैं और लगता है कि यार प्रिपरेशन हुई नहीं। फिर आदमी किस्मत पे दोष डालना शुरू करता है। किस्मत इज अ वेरी रिमार्केबल फैक्टर बाय द वे इन ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स एंड सिलेक्शंस, एवरीवन नोज इट, बट परहैप्स आप अभी सिंस यू आर यंग सो यू कांट पुट योर एक्सक्यूजेज ऑन नसीब स्लैश किस्मत। आप अपनी पूरी मेहनत करिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि किस्मत में है क्या। बिना काम करे, बिना अटेम्प्ट दिए, बिना एक बारी तबीयत से अटेम्प्ट दिए कैसे कह सकते हैं कि किस्मत में नहीं थी सिलेक्शन। उसके बाद अगर एक बारी पूरी फोर्स के साथ या दो बारी पूरी फोर्स के साथ आपने अटेम्प्ट दिया और बिल्कुल मामला नहीं बना और तीसरी बार भी नहीं बना, तो शायद किस्मत में है ही नहीं। बट फिलोसॉफिकल डिबेट्स असाइड, आप अपनी मेहनत पूरी करिए और एक तरह से गाइडेड, एक तरह से स्ट्रक्चर्ड तरीके से मेहनत करिए। वी आर लुकिंग एट ओपनिंग I think a mentorship program only in which I won't teach you any subjects, but perhaps I can guide you, I can be with you. We are thinking about it, but let us consider how financially viable it is, because well, time की एक opportunity cost होती है and I'm usually busy from 2 p.m. to 6 p.m. in my offline batch, which is supplied the same in an online format on our website. तो वो देखना पड़ेगा, बट कांट प्रॉमिस रियली एनीथिंग, बट जब होगा तो अनाउंस कर देंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड yeah, I think let us wind up this session. I think it should have been like 20-25 minutes वाला scene है। तो I hope it solves, at least gives you a basic guideline sort of a thing as to what to do with these examinations. And जो भी प्रश्न हो, जो भी सवाल हो, नीचे ज़रूर कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा। एंड ताकि मुझे मतलब पता, एक तो पता भी लगता है बिकॉज on all of our videos I think I answer a lot of student queries beforehand in advance, so nobody even bothers leaving a comment, and eventually you can't really figure out whether you did a good enough job or whether it was comprehensible, as in whether people understood it, whether there was some things more that they want to know. So then that again you will have to communicate with me. All right, wishing you all the very best, whether you are enrolled somewhere else, whether you're enrolled with us, whether you are not enrolled anywhere, doesn't really matter. You do your thing, however, do it in a structured manner, in a specific manner, and the thing that suits you the most and suits the state that you have chosen the most, because prep has to be tailored and amended accordingly. All righty then, wishing you all the very best with your prep. If you're facing any difficulty, you can always go to our website and check for any resources. So we keep on publishing many resources from time to time, and you can check for all of those resources. And I'll see you as a judge. Wishing you all the very best. Take care. Bye.